All right. Good afternoon, everyone. So we have 40 odd students coming in. Good, good. ठीक है. All right. So आज का discussion agenda is pretty much similar to what we had last time. हमारा वॉल्यूमेट्रिक का जो HA4 बुकलेट का HA4 असाइनमेंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट आई विल give you a small introduction about electrochemistry chapter and give you an overview that आपको next week के लिए क्या करना है. ठीक है, assuming आपका class next week भी first half of the week में ही होगा, तो I'll keep the amount of work that needs to be done something that can be managed by all of you. ठीक है. Now, based on our discussion in the last class के discussion के बाद doubts या कुछ और भी अगर आपको clear करना है तो let me know. I can use some starting time to deal with that. ठीक है, I'll take that as a no doubt and then let's begin our discussion of HA4. Now, I understand आप लोगों ने HA4 के doubts Google spreadsheet में डाले हैं and they almost completely constituent the entire HA4 only. 1 से 14 तक पूरे डाल ही दिए आप लोगों ने. So there is hardly anything left. I will discuss the sections which are important and at least I'll let you know that ये questions तो आपसे हो ही जाने चाहिए थे. अगर ये नहीं हुए हैं तो फिर you really aren't well prepared for starting electrochemistry. At least basics आपसे होने चाहिए थे. So let me quickly talk about those easy questions first. ठीक है, 14th question easy है. Then 13th question भी easy है. ये भी अगर आपसे नहीं हो रहा है then as I said you are not prepared for moving on. 12th I will discuss, 11th I will discuss. 10th भी अगर आपसे नहीं हो रहा है तो भी I'll just quickly mention these questions right here. 13th, 10th, then 9th. ठीक है, 8th में मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा. 7th. ऑल राइट. ठीक है, these were really easy questions. अगर आपसे ये questions नहीं बन रहे हैं तो प्लीज spend some time in the मतलब आप स्टार्टिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ही रिवाइज करो, क्योंकि अगर ये आपसे नहीं बन रहा है तो फिर आपको वॉल्यूमेट्रिक का एन फैक्टर कैलकुलेट करना तक नहीं आ रहा है, आपको इक्विवेलेंट क्या होता है वो नहीं पता है, डेफिनेशन तक नहीं पता है उसकी. देन इन दैट केस लाइक आई रियली कांट हेल्प. ठीक है, देन आई वुड से 12th question, 11th question, 8th question, and
and you can say fifth question and fourth question, they are medium. अगर ये आपसे हो जाते हैं तो अच्छा है, मतलब you are at a good level in this chapter. Like these are good questions, they require you to be conceptually clear. Then क्या क्या बच रहा है? I think sixth question. And 3, 2, 1. ठीक है, ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस हैं which are a little difficult. ठीक है, they are questions which require you to think a little bit more. ठीक है, now please judge your level. आप कहाँ पर हो? अगर ये क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं एंड मीडियम में भी लेट्स से पार्शियली आपसे चीजें हो रही है, तो भी आप एक्सेप्टेबल लेवल पर हो. यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लास एज इन वर्क विद इलेक्ट्रो. बट अगर आपसे इजी क्वेश्चंस भी नहीं हो रहे हैं तो आई वुड रेकमेंड कि आप थोड़ा सा एक इंट्रोस्पेक्शन करो और फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर दोबारा देखो वॉल्यूमेट्रिक का. एटलीस्ट ये बेसिक्स एंड ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हमें आगे बहुत काम आएंगे. ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट विद द difficult questions first. ठीक है, or in fact let me start with the medium difficulty questions first also. I think it will be good for everyone to get a grip on them before they move. ठीक है, 12th question में कैसा है? मेटल ऑक्साइड है say M2OX and it is giving its chloride MClX. Now this is the assumed reaction. ठीक है, ये हमारा मेटल ऑक्साइड है और ये मेटल क्लोराइड है. ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या माना है? वैलेंसी ऑफ मेटल इज X. ठीक है, and it's not changing. ये इसके पीछे का एक assumption ही है, बिकॉज अगर ये वैलेंसी चेंज कर रहा होता तो फिर हमारे लिए कहानी मुश्किल हो जाती. लाइक वी वुड हैव इन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन. तो अब आपके लिए इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा. आपसे बोला जा रहा है कि ये 3 ग्राम है और ये 5 ग्राम दे रहा है. ठीक है, सो इफ यू लुक एट द चेंजेस इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन -2 से 0 जा रहा है एंड क्लोरीन 0 से -1 जा रहा है. तो अगर मैं आपसे n फैक्टर पूछूं, ठीक है, इफ आई आस्क यू द n फैक्टर ऑफ दिस, तो ये आपका 2x रहेगा एंड इसका n फैक्टर विल बी x. इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो फिर इक्विवेलेंट ऑफ M2OX विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ MClX. इसको हम लोग यूज करेंगे. इक्विवेलेंट क्या होते हैं? मोल्स इनटू n फैक्टर, या फिर आप मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट लिखना हो तो वो भी लिख सकते हो. दैट्स समथिंग अप टू यू. 3 ग्राम है एंड ये क्या था? M2OX. so 2m + 16x, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा. इसके मोल्स हो गए एंड 2x इसका n फैक्टर हो गया. देन 5 ग्राम से एंड m + 35.5x, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया इनटू इसका n फैक्टर x हो गया. इससे आप m/x की वैल्यू निकाल लोगे. m नहीं मिलेगा, x नहीं मिलेगा, बट m/x मिल जाएगा, which is what the equivalent weight of metal is. उसका atomic weight divided by उसका oxidation state.
उसका n फैक्टर। ठीक है, सो दिस वाज, सो ये क्वेश्चन ना एक्चुअली HA2 में भी है। ठीक है, दिस इज अ repeat from HA2. In fact, आप HA2 का I'll tell you the question number also. HA2 का question number 20. ठीक है, so this is something, अगर आप HA2 की डेप्थ में जाते तो आपके लिए इजी हो जाता, बट बिकॉज आई हैड आस्क्ड यू कि अपने को इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है अभी, दिस वर्क्स फॉर अस, सो इट्स ओके। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 11th बता देता हूं मैं। 11th में थोड़ा सा वापस से एक बार के लिए स्किप्स आर माइंड, लाइक इट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रहा है, इट्स अ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऐसा K2Cr2O7 प्लस Pb2 प्लस, तो इससे बन रहा है आपका PbCr2O7। ठीक है, ये जस्ट एक सॉलिड प्रेसिपिटेट बन जाएगा, तो इसमें कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर इसमें मुझे n फैक्टर देखना है, n factor of a salt is like net cationic or net anionic charge. That is what is being used here. So इसमें अब आपको K2Cr2O7 के बारे में बोला जा रहा है, तो उस पे नेट चार्ज 2 है, सो इसकी वजह से अब आप नॉर्मेलिटी बता सकते हो उसका। सो नॉर्मेलिटी इज molarity into n factor, right? So normality is equal to molarity into n factor, so ये आपका 0.1 मोलर है और इसका n फैक्टर 2 है। ठीक है, had it been a redox reaction तो फिर आपका B ऑप्शन रहता, जहां पर क्रोमियम +6 से +3 में जाता है, बट दिस वाज इन दैट केस एंड इट इज नॉट समथिंग जो कि क्वेश्चन में भी अच्छे से बताया गया है, मतलब आई वुड नॉट ब्लेम यू फॉर नॉट बीइंग एबल टू गेट द आंसर फॉर दिस, बट देन नाइदर इट इज सम गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, देन 8th, 5th एंड 4th। ठीक है, 8th क्वेश्चन में बता देता हूं आपको। 8th क्वेश्चन में मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, देयर कैन बी मल्टीपल आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। अगर मैं इस कंपाउंड के बारे में बात करूंगा KHC2O4 dot H2C2O4 dot 4H2O. Now if I ask you as acid, इसका n फैक्टर क्या होगा, so you will tell the number of H it can give. तो क्या रहेगा आंसर आपका? 3 रहेगा, ग्रेट, 3H दे सकता है ये। एज बेस number of H plus that can be taken, कितना रहेगा इन फैक्टर? यहाँ पर ये हाइड्रोलिसिस कर सकता है ना, ये K प्लस आयन की जगह एक H ले सकता है, 1। ठीक है, तो इसका एज बेस एन फैक्टर बना गया। अच्छा, अब यहाँ पे नोटिस करना एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, एज रिड्यूसिंग एजेंट इट कन्वर्ट्स टू CO2। ठीक है, आपने देखे हैं बहुत सारे रिएक्शंस जहां पर ऑक्सैलिक एसिड में ऑक्सैलिक एसिड का कार्बन इट कन्वर्ट्स टू CO2, तो एन फैक्टर कितना होगा?
यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो कार्बन +3 स्टेट में है और CO2 में किस स्टेट में जाता है? +4 में। 2 तो एक का चेंज है, बट कितने कार्बन के आइटम है? 4 आइटम है ना, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के एक्चुअली मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, A, B एंड D। ठीक है, बट क्योंकि इसमें लिखा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन, तो उसमें आंसर आपका सॉरी A, B एंड D नहीं, सॉरी A, C एंड D। तो बट इसमें न्यूट्रलाइजेशन लिखा हुआ है, तो न्यूट्रलाइजेशन में आपका आंसर मैं सिर्फ A और C लूंगा, 1 एंड 3। ठीक है, ये n फैक्टर 4 के लिए न्यूट्रलाइजेशन नहीं, रेडॉक्स रिएक्शन होना चाहिए था। ये समझ में आया? ठीक है, अगर ये समझ में आया तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे अलग से करवाना चाहूंगा। ठीक है, सो लेट्स जस्ट क्विकली डू वन क्वेश्चन फ्रॉम आगे के सेक्शन। ठीक है, सो दैट ठीक है, ये 6th क्वेश्चन करो। कौन सा है ये? गेट इक्विप्ड का 6th क्वेश्चन। ये एक बार ट्राई करो आप लोग। अभी ट्राई करो। It is based on the concept that I just spoken about. All right, हुआ? इसमें आप नोटिस करो कि एक जगह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है और एक जगह रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, NaHC2O4 plus NaOH. This is a neutralization reaction, right? इस केस में ये बेस है, इसका इन फैक्टर 1 रहेगा एंड ये एसिड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका इन फैक्टर 1 रहेगा। अब इनके बारे में क्या क्या डिटेल दी हुई है? ये 10 ml है एंड ये भी 10 ml है और ये 0.1 मोलर है।
ठीक है, इसका मोलारिटी से C है। दूसरे केस में क्या बोला जा रहा है, दिस सेम कंपाउंड NaHC2O4 इज रिएक्टिंग विद KMnO4। ठीक है, एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। इसका n फैक्टर 5 रहेगा एंड इसका n फैक्टर 2 रहेगा, राइट, बिकॉज द प्रोडक्ट्स विल बी Mn2 प्लस एंड CO2, राइट। ये भी 10 ml है, सेम सी मोलर ही है एंड इसके बारे में क्या बोला जा रहा है, दैट दिस इज ऑल्सो 10 ml एंड इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमसे पूछी जा रही है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूं तो 1 इंटू सी इंटू 10 इज इक्वल टू 1 इंटू 0.1 इंटू 10 एंड यहाँ पर देखूंगा तो 2 इंटू सी इंटू 10 इज इक्वल टू 5 इंटू जो क्वेश्चन मार्क कॉन्सेंट्रेशन हमको निकालनी है इंटू 10, I divide the two, divide and get the question mark what it will be equal to। ठीक है, is everyone comfortable with this? किसी को कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं। ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है तो इसी का गेट इक्विप्ड का क्वेश्चन नंबर 1 भी आप करने के लिए रेडी हो। गेट मी द आंसर टू फर्स्ट क्वेश्चन, ये छठे क्वेश्चन के ऊपर वाला ही है।
डन। हो गया? यस सर। Yes, sir. ठीक ठीक ठीक, ग्रेट. सो आई जस्ट क्विकली राइट इट आउट ओवर हियर. बहुत ही सिंपल तरीके से करना है आपको. यहाँ पर नोटिस करना x डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू, ये इसके मोल्स हो गए, इनटू इसका n फैक्टर 2 विल बी इक्वल टू 100 इंटू 0.02 इंटू 5. ये पहला इक्वेशन होगा. दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन दैट यू हैव, जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया. एंड दूसरे केस में y डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 will be equal to 100 into 0.05 into कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का n फैक्टर 2 होगा. That's it. इक्विवेलेंट बराबर इक्विवेलेंट करना है, you divide and get the answer. ठीक है. All right, now coming back, मैंने 8th क्वेश्चन कर लिया था. 8th के बाद में 5th and 4th क्वेश्चन बता देता हूँ आप लोगों को. ठीक है. 5th question. 5th question was related to the redox reaction again, H2O2 and so इसमें step by step reactions हो रही हैं, multiple reactions हो रही हैं. That is what made it difficult. Otherwise it is pretty simple. So जब H2O2 को heat करते हैं तो उसका reaction is this disproportionation or we call it self decomposition reaction. फिर ये जो evolved gas है इसका reaction हो रहा है कैल्शियम के साथ में to form calcium oxide. ठीक है. मतलब मैं बैलेंस्ड, सी आई कैन डू इट वाया इक्विवेलेंस मेथड आल्सो और आई कैन डू इट वाया मोल कंसेप्ट आल्सो. मैं दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए, दोनों तरीका देखना इजी रहेगा. एंड देन दिस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2SO4 undergoes neutralization reaction to give you calcium sulfate and H2O. ठीक है. So let me try to do this question. पहले मोल कंसेप्ट के तरीके से करता हूँ. तो बैलेंसिंग कर लेते हैं. एंड एक्चुअली इसमें सारी इक्वेशंस बैलेंस्ड ही हैं, मतलब ये सब मैंने बैलेंस्ड लिखी हुई हैं. तो ये मैं मोल कंसेप्ट के तरीके से कर देता हूँ. अब यहाँ पर देखना मोल्स ऑफ H2O2 से हमें कितना, ओके सो दिस वाज 100 इंटू 10/11.2, ये इसकी मोलारिटी हो जाएगी ना, ये इसके मिलीमोल्स हो गए. कितना O2 बन जाएगा इससे, हाफ ऑफ इट, हाफ इंटू 100 इंटू 10/11.2. ठीक है. सो यही मोल से अब कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है. तो अगर ये हाफ इंटू 100 इंटू 10/11.2 मोल्स हैं तो उससे कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, हाफ से 1 बनेगा तो ये x से 2x बनेगा. तो ये 100 इंटू 10/11.2 मोल्स आ गए इसके कैल्शियम ऑक्साइड के. अब ये यहाँ पर 100 इंटू 10/11.2 मोल्स हैं, मिली मोल्स हैं इनफैक्ट कैल्शियम ऑक्साइड के. तो उससे कितना H2SO4 कंज्यूम होना चाहिए. द आंसर इज सेम नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम होने चाहिए. तो ये भी 100 इंटू 10/11.2 मिलीमोल्स कंज्यूम होना चाहिए. ठीक है. सो नाउ यू कैन पुट इट दैट 50 इंटू इसका कॉन्सेंट्रेशन जो भी रहेगा should be equal to 100 into 10/11.2. So you will get your answer of the concentration. ये समझ में आया. एंड इसी चीज को अब आप इक्विवेलेंट से भी कर सकते हो. ठीक है. मतलब मैं एक बार क्विकली आपको अगर बताऊं, सो
इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट से आप कैसे करोगे? H2O2 upon decomposition gives H2O and O2. अभी इसमें I won't bother about balancing. Calcium plus O2 gives calcium oxide and calcium oxide plus H2SO4 gives whatever. I don't care. अभी क्विकली यहाँ पर नोटिस करना एन फैक्टर O2 का कितना रहेगा? -1 से 0 जा रहा है, तो अच्छा नहीं, इसमें इक्विवेलेंस में थोड़ा सा आपको ट्रिक लग जाएगा, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लग जाएगा इक्विवेलेंस से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर O2 का इन फैक्टर दोनों केस में डिफरेंट है। यहाँ पर 1 का चेंज और 2 है, ठीक है। यहाँ पर 0 से -2 जा रहा है, तो इसका इन फैक्टर कितना हो गया? 4। तो आप देख रहे हो O2 का इन फैक्टर डिफरेंट है दोनों केस में। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट्स बराबर नहीं हो पाएंगे, मुझे यहाँ बीच में मिलीमोल्स के थ्रू जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख दूंगा, इसमें नोटिस करना equivalent of H2O2 is equal to equivalent of O2 and equivalent of O2 is equal to equivalent of calcium oxide and equivalent of calcium oxide is equal to equivalent of H2SO4, ठीक है। बट मैं इन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकता, ठीक है, दे आर नॉट सेम बिकॉज एन फैक्टर अलग अलग है, तो मुझे मिलीमोल्स में जाके करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आई एम नॉट डूइंग द मेहनत ऑफ इट, वो हमने ऑलरेडी मोल कंसेप्ट वाली मेहनत यहाँ पे देख ली है, आप लोग खुद से भी आप समझ के एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन मैं बताता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन कैसा रहेगा। 4.2 grams of KOH and calcium hydroxide are neutralized by an acid and 0.1 equivalent of acid होगा, तो कॉम्पोजिशन बताना है, तो ठीक है ना। इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, ये एक रिएक्शन रहेगा, ठीक है। अब आप मान लो इसके A मोल्स है, किसके? KOH के, तो A इंटू 1 और B मोल्स हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, तो B इंटू 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इन फैक्टर 2 रहेगा, तो शुड बी इक्वल टू 0.1। ये एक इक्वेशन हो गई, एंड दूसरी इक्वेशन मास से आ जाएगी, दैट A इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KOH 39, 40, 56 प्लस B इंटू 34 प्लस 40 कितना होता है? 74। दिस विल बी 4.2। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, ए आ जाएगा और बी आ जाएगा। ये क्या थे? मोल्स ऑफ KOH एंड बी थे मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कॉम्पोजिशन, एक्चुअली मास कॉम्पोजिशन पूछा है, तो आपको इससे मास निकालना पड़ेगा, माय बैड। ये मोल से वापस मास निकालना पड़ेगा ताकि आप मास कॉम्पोजिशन बता पाओ, ठीक है। तो ये प्रोफेसर हम 60 से x और 4.2 माइनस x ग्राम्स नहीं ले सकते? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हो, ओके सर। वैसे भी कर सकते थे, मतलब इनफैक्ट आप x ग्राम बोलते अपॉन इक्विवेलेंट वेट, फिर सो मेरे को क्या, ये डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में चीजें आती है तो थोड़ा सॉल्व करने में अच्छा ही लगता, तो इसके लिए मैंने मोल्स रिज्यूम कर लिया था। ऑलराइट, तो ये आपके मीडियम डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चंस हो गए। देन डिफिकल्ट लेवल वाले डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते हैं, 1, 2, 3 एंड 6, ठीक है। सो 6th क्वेश्चन पे पहले जाते हैं। नाउ
सिक्स्थ क्वेश्चन पे अगर हम लोग जाएंगे तो विल कम अक्रॉस ओके, सो इट वाज दैट कॉन्सेप्ट जो कि एसिड बेस वाला, जिस पर ऑलमोस्ट पूरा एक लेक्चर था। ठीक है, मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। It will be kind of a rerun of what you would have seen in the video lectures. Okay, and this is something which is particular for Na2CO3 and NaHCO3. Okay, if you remember H2CO3, ठीक है, H2CO3 का Ka1, ठीक है, ये अराउंड 10 की पावर -7 के आसपास होता है, एंड Ka2 अराउंड 10 की पावर -11 के आसपास होता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, मतलब इस कॉन्सेप्ट के लिए, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो इफ यू रिमेंबर नाउ दैट जब हम Na2CO3 के टाइट्रेशन की बात करते हैं, Na2CO3 टाइट्रेशन विद से HCl, तो इसमें कैसा रहेगा? मल्टी स्टेप रिएक्शन होगा। पहले Na2CO3 का एक रिएक्शन होकर NaHCO3 बनेगा। ठीक है, एंड देन अगर हम और HCl डालेंगे तो फिर ये सेकेंड रिएक्शन होगा। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट रिएक्शन, और यू कैन से फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। जब ये खत्म होता है फिर उसके आगे सेकेंड रिएक्शन का नंबर आता है, जिससे सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट आता है। ठीक है, नाउ इफ यू रिमेंबर ग्राफिकली, तो शायद आपको कुछ कुछ याद आए। अगर हमने HCl नहीं डाला होता तो इसका pH रफली 12 के आसपास होता है। ठीक है, आप वो फॉर्मूला लगा देते, यहाँ पर सिर्फ Na2CO3 सोल्यूशन होता, एंड उसके लिए आपका फॉर्मूला लगता स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सॉल्ट वाला, pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ pKw प्लस pK2 प्लस log C। ये वाला फॉर्मूला आप लगाते तो उससे 12 के आसपास आ जाता। ठीक है, C का वैल्यू नहीं है, बट चलो मान के चलो 0.1 मोलर होता ज़्यादा, तो रफ कैलकुलेशन के हिसाब से 12 के आसपास इसका pH आ जाता। फिर उसके बाद में ये पहला रिएक्शन होता, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन ये तो लिमिटिंग रिएजेंट होता, तो ये तो कंज्यूम हो जाता। ठीक है, मतलब इफ यू रिमेंबर ये कंज्यूम हो जाता, और बचता क्या? बफर सोल्यूशन Na2CO3 एंड NaHCO3 का। तो वो बफर सोल्यूशन में फिर ग्रेजुअल चेंज इन pH आ रहा होता। ठीक है, देन जब ये रिएक्शन पूरा हो जाता तो एंड में सिर्फ NaHCO3 बचता। ठीक है, एंड NaHCO3 वुड हैव बीन एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। ठीक है, ओनली वी विल से NaHCO3, यहाँ पर शार्प चेंज आएगा pH का, तो ये कुछ इस तरीके से शार्प चेंज ऑब्जर्व होता, और ये आपको किस pH लेवल के अराउंड दिखता शार्प चेंज? अब इसका फॉर्मूला आपको याद है, एम्फीप्रोटिक का pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ pK1 प्लस pK2। तो ये अराउंड इसका pK1 pK2 मैंने अभी ऊपर लिख के दिया आपको, 7 और 11 है, तो ये अराउंड 9 आपको pH चेंज देखने को मिलता। ठीक है, थोड़ा सा नीचे, ठीक है,
देन इसके बाद अब सेकेंड रिएक्शन होता तो वापस से बफर बनता, ठीक है। NaHCO3 ये आपका एक्सेस में रहता, H2CO3 और NaHCO3 का रिएक्शन सोल्यूशन रहता, ये भी एक बफर रहता, तो वापस से यहाँ पे ग्रेजुअल चेंज इन पीएच आता, ठीक है। ये ग्रेजुअल चेंज इन पीएच होता थोड़े से टाइम के लिए, और फिर उसके बाद में वापस से एक शार्प चेंज इन पीएच आता, एंड दिस वुड हैव बीन अराउंड व्हाट, दिस वुड हैव बीन अराउंड 4, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या बचता, जब ये सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट आता, ओनली H2CO3 सोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें आपका H प्लस इज इक्वल टू रूट K1 इंटू सी का फॉर्मूला आप लगाते और कैलकुलेट करते तो अराउंड 4 आता, ठीक है। दिस वाज समथिंग जो हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में अच्छे से करा भी था। अब इफ यू रिमेंबर दैट फिनोल्फ्थलीन एज एन इंडिकेटर का रेंज 8 to 10 होता है, तो इट वुड हैव बीन एबल टू कैप्चर दिस इक्विवेलेंस पॉइंट, एंड मिथाइल ऑरेंज जिसका रेंज कुछ 3 to 4 के आसपास होता है, एग्जैक्ट डेसिमल प्लेसेस तो मुझे याद नहीं रहे याद, but that would have been sufficiently or it would have been sufficient to capture this second equivalence point, ठीक है। so अगर अब आप नोटिस करो इसी चीज को इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मान लो कि मैं ये टाइट्रेशन कर रहा हूँ Na2CO3 विद HCl टाइट्रेशन कर रहा हूँ, एंड मैं फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, तो सिर्फ पहला रिएक्शन होने के बाद ही मुझे कलर चेंज दिख जाएगा, क्योंकि पहला रिएक्शन होने के बाद ये पीएच का रेंज क्रॉस हो जाएगा और फिनोल्फ्थलीन कलर चेंज कर देगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि सिर्फ यही रिएक्शन हुआ है, और इसमें आप नोटिस करोगे तो Na2CO3 का इनफैक्टर कितना दिखेगा, क्योंकि उसने बस एक ही H लिया है, एक्सेप्ट करा है, तो Na2CO3 का इनफैक्टर 1 रहेगा, ठीक है। और अगर यही रिएक्शन मिथाइल ऑरेंज की प्रेजेंस में हो रहा होता, तो मिथाइल ऑरेंज तो कलर चेंज जब करता जब ये दोनों रिएक्शन हो जाएंगे, और उस केस में आपको दिख रहा है कि Na2CO3 से H2CO3 बन रहा है, यानी कि 2 H एक्सेप्ट हुए हैं, तो तब Na2CO3 का इनफैक्टर 2 लिखा जाता। ये समझ में आया? तो अब विद दिस कॉन्टेक्स्ट इन माइंड, लेट मी try to solve the sixth question from equivalence concept perspective. So as you can see, अब यहाँ पर कंपाउंड like in fact let me use this, that Na2CO3 and NaHCO3, ठीक है। अगर फिनोल्फ्थलीन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर, तो इसका इन फैक्टर कितना है 1, एंड NaHCO3 का इन फैक्टर 0, क्योंकि NaHCO3 का रिएक्शन ही नहीं होगा, उसके पहले ही फिनोल्फ्थलीन कलर चेंज दिखा देगा। और अगर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज किया है तो Na2CO3 के दोनों स्टेप्स का रिएक्शन होगा, तो 2H एक्सेप्ट कर रहा होगा, इसका इनफैक्टर 2 होगा, एंड NaHCO3 का एक रिएक्शन हो जाएगा जहां पे वो H एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसका इनफैक्टर 1 लिया जाएगा। ये टेबल समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है। सो अब इस चीज को यूज करके मैं इस 6th क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूंगा।
ठीक है, इस मिक्सचर में मान लेते हैं, सो लेट्स से अज्यूम मिक्सचर हैज A moles of Na2CO3 and B moles of NaHCO3, ये मान लेते हैं। तो अब पहला इक्वेशन क्या बनेगा, दैट फिनोल्फ्थालीन की प्रेजेंस में 1 इंटू ए प्लस 0 इंटू बी, ये इक्विवेलेंट्स हो गए इन दोनों के बेस के, इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड विच इज x इंटू 1। ठीक है, इनफैक्ट इनको मिली मोल्स बोल देता हूं मैं, ताकि बाद में यूनिट्स का प्रॉब्लम नहीं है। ये इक्वेशन समझ में आई क्या? These are equivalent of base and this is the equivalent of acid HCl. Then methyl orange की presence में इसका n factor 2 रहेगा और इसका n factor NaHCO3 का 1 रहेगा, right? So this will be y into 1. ये समझ में आया? Yes. ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हो गई हमारे पास। इससे क्या समझ में आएगा, दिस इम्प्लाइज a is equal to x and b is equal to y minus 2x. Yes. ओके, अब बोला जा रहा है कि इस मिक्सचर को हीट करेंगे। ठीक है, ये Na, अब ये थोड़ा सा वापस से आपके लिए डिफिकल्ट हो गया, मतलब ये अब एस ब्लॉक की नॉलेज है। एस ब्लॉक में आपको पढ़ाया जाता है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो इसमें जब हीटिंग होती है तो क्या होता है, दिस कंपाउंड Na2CO3 is quite stable. This is quite stable and does not decompose. ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज होता है ये, ऐसे 800 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस टेम्परेचर्स पे डिकम्पोज होता है, अदरवाइज इट इज क्वाइट स्टेबल। एंड NaHCO3 के साथ में होता है, इट decomposes as per the following reaction। ठीक है, इसका रिएक्शन भी सिंपल सा ही रहता है, NaHCO3 decomposes to Na2CO3 plus H2O plus CO2। ठीक है, तो अब क्योंकि इसके B मोल्स थे तो आपसे पूछेंगे तो कितना CO2 प्रोड्यूस होगा, तो आपका आंसर आएगा B/2 मोल्स। सो दिस इम्प्लाइज B/2 कितना हो गया, B was how much, y minus 2x, y minus 2x मिलीमोल्स था इनफैक्ट, y minus 2x upon 2 into 10 की पावर -3 मोल्स। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसका तब तक। Yes, sir. ऑल राइट, सो इसके बाद 3, 2, 1 ये वाले क्वेश्चंस थे। सो लेट मी एक्चुअली इसके बाद टेक सेकेंड क्वेश्चन है क्योंकि कंटिन्यूटी में है। ठीक है, अब मुझे बताना आप Na2CO3 का n फैक्टर कितना होगा व्हेन फिनोल्फ्थालीन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। अभी बताया 1. राइट, n फैक्टर 1 रहेगा एंड Na2SO4 का n फैक्टर Zero. कितना होगा, 0. 0। ठीक है, क्योंकि Na2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट, Yes. सो इसका कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, ये तो स्पेक्टेटर आ जाएगा।
तो अब आपका जो रिएक्शन है उसका एनालिसिस कैसा हो जाएगा, ठीक है, से मिलीमोल्स ऑफ Na2CO3 इंटू उसका n फैक्टर 1, ठीक है। अच्छा, वो थोड़ा सा उसमें डाइल्यूशन भी करा जा रहा है, ओके। तो आप ये मान के चलो, लेट मी राइट इट थोड़ा सा डिटेल में, लेट millimoles of Na2CO3 be equal to A, ठीक है। दिस इज इन 250 ml solution, ठीक है। सो दिस implies millimoles of Na2CO3 will be equal to A by 10 in 25 ml solution, है ना, 1/10 ही लिया उसका। तो अब दिस implies इक्विवेलेंस इक्वेट करने हैं, तो A by 10 into 1, ये इसका n फैक्टर हो गया, should be equal to 20 into 0.1, ये एसिड का n फैक्टर है, मतलब एसिड का ये सीधे नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम लिख दिया ना इक्विवेलेंट, क्योंकि इसकी नॉर्मेलिटी दी हुई है, ठीक है। ये नॉर्मेलिटी है सीधे सीधे, तो इससे आपको A की वैल्यू मिल जाएगी और उससे मास मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, देन थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन में कैसा है, "25 ml of Na2CO3 required this much HCl for titration", ठीक है। तो Na2CO3 प्लस HCl का रिएक्शन होने वाला है। डेटा कैसा कैसा है, इसका n फैक्टर 1, इसका n फैक्टर 2, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई इंडिकेटर वगैरह मेंशन नहीं करा हुआ है, तो हम लोग यही मानेंगे कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की बात हो रही है। इनफैक्ट क्वेश्चन के वर्ड्स में भी लिखा हुआ है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। अब और क्या डेटा दिया हुआ है, इसका 25 ml सोल्यूशन है जिसकी डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml दी हुई है, okay? अरे इसका 32.9 ml, अरे म्यूट कर लो यार, 32.9 ml दिया हुआ है, ठीक है। एंड इसकी मोलारिटी दी हुई है 109.5 डिवाइड बाय 36.5 पर लीटर है ये। तो ये समझ में आया आपको कि ये 3 मोलर है, राइट। तो ये आपको पहले क्वेश्चन का डेटा दिया हुआ है। तो अब आप इससे अगर करोगे कैलकुलेशन, तो n इंटू इसका वॉल्यूम 25 इंटू इसका कॉन्सेंट्रेशन से C था, ठीक है, इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 32.9, 1 इसका n फैक्टर हो गया, 3 मोलारिटी हो गई और 32.9 इसका वॉल्यूम हो गया। ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर इसके बाद आपको बोला जा रहा है कि सेम Na2CO3 सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइम H2SO4 के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। इसका n फैक्टर भी 2, इसका n फैक्टर भी 2 और इसका 125 ग्राम है। डेंसिटी वही रहेगी क्योंकि सेम 1.25 ग्राम ml सेम सोल्यूशन है। एंड पूछा जा रहा है इसमें कि ये 0.84 नॉर्मल है, तो इसका वॉल्यूम कितना लगेगा। तो वापस से आप वही चीज़ करो जो आपने ऊपर करी है, 2 इंटू, अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा 125 अपॉन 1.25, ठीक है। मास अपॉन डेंसिटी would be the volume into concentration C will be equal to 2 into 0. और नॉट 2 की जरूरत नहीं है इस बार क्योंकि सीधे नॉर्मेलिटी दी है,
ठीक है, तो सीधे 0.84 इंटू वी करो, राइट। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपका वी आ जाएगा, सी कट जाएगा। ये समझ में आया? इज दिस समथिंग क्लियर विद एवरीवन? ठीक है, Yes, sir. ऑल राइट। अब क्या बचा? फर्स्ट क्वेश्चन में ना थोड़ा सा आई थिंक कुछ तो गड़बड़ था, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर। ठीक है, वो फिगर आउट करते हैं, अभी पता पड़ जाएगा क्या गड़बड़ था। सो नोटिस करना, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको NaOH के साथ मिलाते हैं, एक्सेस लिखा हुआ है, तो इससे NH4OH और NaCl बनेगा। ठीक है, दिस इज बेसिकली अमोनिया डिसॉल्व्ड इन वाटर ओनली। ठीक है, अब उसके बाद बोला जा रहा है कि ये जो अमोनिया डिसॉल्व्ड इन वाटर है NH4OH, इसका रिएक्शन करा रहे हैं H2SO4 के साथ में। ठीक है, ये जो अमोनिया गैस है बेसिकली यहाँ से लिबरेट हो गया और उसका रिएक्शन H2SO4 के सोल्यूशन के साथ कराया जा रहा है। ठीक है, एंड इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि ये 150 ml है एंड 1/5 नॉर्मल है। अब इसके बाद में बोला जा रहा है कि जो एसिड बच गया है H2SO4, ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज कराया जा रहा है NaOH के सोल्यूशन के साथ में। ठीक है, सो ये दिया हुआ है 20 ml 1 नॉर्मल। ठीक है, जो भी लेफ्ट है। सो एज यू कैन सी, यहाँ पर अब इन दोनों रिएक्शन में जो ये H2SO4 है, ये इन दोनों के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, NH4OH और NaOH के साथ में। ठीक है, सो आई कैन राइट यहाँ पर, और दोनों जगह एन फैक्टर भी सेम ही रहेगा, इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NH4OH प्लस इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। ये लिखने में किसी को कोई फाइट है क्या? ये समझ में आ रहा है? है कि नहीं? यस सर। हाँ अच्छा, हाँ, अब सर। ये जो इक्विवेलेंट ऑफ NH4OH है वो इक्विवेलेंट ऑफ NH4Cl के बराबर है। So this is equal to equivalent of NH4Cl। ये चलेगा, ये फर्स्ट रिएक्शन से। तो बस अब यहाँ पर देखो 150 इंटू 1/5 इज इक्वल टू इसका एन फैक्टर 1 इंटू मिलीमोल्स ऑफ NH4Cl प्लस, अब ये कितना रहेगा यहाँ पर, इसके बारे में कितना दिया था डेटा, 20 इंटू 1। ये समझ में आया? Yes, sir. मिलीमोल्स ऑफ NH4Cl कितने आ गए? As you can see, the millimoles of NH4Cl will be 10. ठीक है, and इसका मतलब mass of NH4Cl comes out to be 10/1000 into कितना हो जाएगा ये,
14 प्लस 4 प्लस 35.5, कोई बताएगा कितना होता है ये? 53.5. 533 by 1000. सो 0.535 ग्राम्स हो गया ये, हाँ है ना? अब द थिंग इज कि ये जो ओरिजिनल सैंपल है उससे ज्यादा आ जाता है। ओरिजिनल सैंपल 0.5 ग्राम है, ठीक है। अब आंसर कैसे मैच करता है वो मैं बताता हूँ आपको। इसमें आंसर मैच करेगा दैट इंस्टेड ऑफ अमोनियम क्लोराइड आप सिर्फ अमोनियम लो, ठीक है, एंड इसकी जगह आप सिर्फ मतलब ये पार्ट हटा दो, तो फिर आपका आंसर ये ऐसा 0.17 या 18 ग्राम टाइप्स आएगा, ठीक है, which gives B option as an answer. ठीक है, Yes, sir. yes sir. all right, so these are HF4 के questions, ठीक है। आई एम नॉट एट ऑल गोइंग टू सॉल्व द इजी क्वेश्चंस जो मैंने आपको ऊपर बताए थे। अगर ये इजी क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं तो मतलब पर्सनली मुझे कॉल करो, बात करेंगे, थोड़ी बेइज्जती करूंगा, उसके बाद जरूर बता दूंगा। Thank you sir. ऑल राइट, सो थैंक यू सर। अरे जा ही रहे हो क्या? मतलब थैंक यू करके हो तुम लोग तो। अभी तो अपने पास टाइम है। आई वॉज होपिंग टू गिव यू an intro towards electrochemistry. Sir, what time shall we call? Easy question के लिए कौन था ये? रुको, क्षितिज। क्षितिज है सर। क्षितिज है ये? हाँ ठीक है, तुम रुको, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करके समझा दूंगा, वो बता देंगे। सर प्राइवेटली मुझे भी टेक्स्ट करा था, मुझे लगा आप क्या क्या बोल रहे हो मुझे। अच्छा ठीक है। सो इलेक्ट्रो का इंट्रोडक्शन देखें एक बार क्विकली। अरे एफ क्या होता है? मतलब दिस इज समथिंग व्हिच इज अ न्यू थिंग दैट आई एम नॉट एबल टू F to pay अंडरस्टैंड। respects. What is this new slang that has come? सर एक गेम है तो उसमें होता है कि लाइक एक मिशन में प्रेस F to pay respect, तो फिर मतलब कुछ बुरा हो जाए तो F। कौन से गेम में होता है ये? सर कॉल ऑफ ड्यूटी। कॉल ऑफ ड्यूटी में प्रेस एफ टू पे रेस्पेक्ट। ये हाँ नया सर, मीम भी है काफी अच्छा। भेजना मुझे, देखता हूँ मैं कौन सा मीम है ये। यस सर। ठीक। अभी मत भेजना, बाद में भेजना। ठीक है। ऑल राइट, सो इलेक्ट्रो का इंट्रो देखें। हाँ ओके ठीक है, so let me give you a brief on the chapter itself. So okay, first things first, आप लोगों को अब नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। सो वॉल्यूमेट्रिक पर जितना ध्यान देना था उतना आपने दे लिया है, ठीक है। I would request you not to pursue details of volumetric now, ठीक है। You need to actually start with electrochemistry. So electrochemistry में सबसे पहले तो आप स्टेप ऐप शुरू कर दो खेलना। That is something which as I said वो डैशबोर्ड पे मॉनिटरिंग होगी
इनफैक्ट अभी आपसे थोड़े टाइम में वापस से अपडेट लिया जाएगा, हाउ मच हैव यू कंप्लीटेड, एंड इफ नॉट देन अगेन you would be kind of harassed to play the game. And post that आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं. So वीडियो लेक्चर्स में what I would request each and every one of you is to watch the first 2 video lectures. ठीक है. So इसमें video lecture 1 and video lecture 2 ये आपके लिए करना जरूरी है बिफोर द नेक्स्ट क्लास. देन बुकलेट में से, ठीक है, बुकलेट में FBO का 1 से लेकर 33 एंड FBS में 1 से लेकर 7. दिस इज समथिंग दैट यू हैव एज योर टारगेट फॉर नेक्स्ट वीक. or next class I should say, whenever the next class is. important रहेगा, please ensure that आप लोग सब ये वीडियो लेक्चर्स देख के इतना पार्ट ऑफ द बुकलेट सॉल्व करके आ रहे हो. ठीक है. now as a overall summary, मतलब मैं आपको काइंड ऑफ एक ब्रेकडाउन दे देता हूँ कि किस तरीके से इस चैप्टर का वीडियो लेक्चर्स में सब टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन है. सो लेक्चर 1 to लेक्चर 4, ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन गैल्वेनिक सेल. ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का. गैल्वेनिक सेल इज समथिंग जहां पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया जाता है जिसके अक्रॉस करंट फ्लो करता है. ठीक है. सो इट इज लाइक योर रेगुलर पेंसिल सेल या बैटरी जो आप फोन में यूज कर रहे हो. अभी जब वो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, तो इट इज वर्किंग लाइक अ गैल्वेनिक सेल. उसके अंदर एक कोई स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन चल रहा है जिससे करंट प्रोड्यूस हो रहा है. देन लेक्चर 5 to आई थिंक लेक्चर 7, टोटल कितने लेक्चर्स हैं इसमें इलेक्ट्रो में? डज एनीवन हैव एन आइडिया? कितने लेक्चर्स थे इसमें? लेट मी जस्ट क्विकली एक बार सी. सबके पास लिंक तो है ना? ऐसा नहीं हो कि लिंक ही नहीं हो कुछ बच्चों के पास में. कहाँ चला गया? 8 है सर 9 लेक्चर है. 9 है? हाँ सर 8 नहीं वो एक अच्छा इसमें 8 है. हाँ नहीं एक मिनट, आई जस्ट क्विकली आल्सो अपडेट कि एक वो बीच का मिसिंग लेक्चर आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? नहीं. हाँ सर उसको गिन के 9 है. हाँ मतलब मैंने वो आई थिंक ग्रुप पे अपडेट डाला था, बट नहीं, अगर आप लोगों के पास में है वो अपडेट तो मैं वापस से आप लोगों को बता देता हूँ. जो लेक्चर्स दिए गए हैं, जो पूरा एक लिस्ट था ना, उसमें 8 लेक्चर्स हैं, बट सेकंड और फोर्थ लेक्चर के बीच का मिसिंग है. मतलब जो सेकंड और थर्ड हो गया एक तरीके से. सो आई विल पुट द डेट ऑल्सो. ठीक है. लेक्चर 1 was I think 15th April. Then lecture 2 was 18th April. Then सीधे नेक्स्ट जो लिंक है ना आपके पास में, वो आई थिंक 25th April का है. आप डेट देखोगे ना उस YouTube का जब आता है,
पेज खुलता है तो उसमें नीचे डेट लिखा होता है कि कौन सी डेट को ये लेक्चर हुआ था। तो बीच में एक मिसिंग लेक्चर है, एक लेक्चर 3 है जो 22 अप्रैल का है। दिस इज समथिंग दैट आई हैड शेयर्ड सेपरेटली। यस सर। ठीक है, तो ये आप देख लेना एंड इंश्योर करना कि ये मिस नहीं हो जाए। वैसे आप 2 से जब अगले लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको अपने आप एक डिस्कनेक्ट दिखेगा। ऑलराइट, सो एनीवेज कमिंग बैक, लेक्चर 5 to 7 जो हैं, ठीक है, दे टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब हो गया गैल्वेनिक का उल्टा। सो इट इज लाइक जब आप अपने फोन की बैटरी को चार्ज कर रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है, एक्सटर्नल करंट यूज करके आप एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवा रहे हो। सो उसके ऊपर भी हमारा खास फोकस रहेगा बिकॉज दैट इज समथिंग जिसके बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस रहते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोकोटिंग, इन सब में यही चीज और यही प्रिंसिपल यूज होते हैं। ठीक है, देन लेक्चर 8 and 9, ठीक है, लेक्चर 8 and 9 दे आर अबाउट this part of conductance or you can say conductivity। उसमें बहुत सारे टर्म्स रहेंगे। So that is also an important part of this chapter, जहाँ पर we understand that ions present in a solution have this property that they can move from one region to another region if a potential difference is applied across the solution। तो उसकी फाइनल डिटेल्स हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो उसमें ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स लग जाते हैं। एक बड़ा चैप्टर है एंड काफी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, मतलब इस पे खास ध्यान देना बिकॉज ये आयनिक इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल अगर आप पूछोगे मुझसे तो ये आयनिक के बराबर ही है एक सेंस में, बिकॉज वास्ट है चैप्टर, काफी वास्ट है, काफी सारे सब टॉपिक्स इसमें कवर होंगे एंड काफी इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि आप एक पार्ट समझ लिया तो दूसरा पार्ट नहीं भी समझा तो चलेगा। इसमें सारे पार्ट्स स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होते जाते हैं। जब मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के बारे में बात करूंगा तो मैं सिंपली ये बोल दूंगा कि अरे गैल्वेनिक समझा तो था, उसका उल्टा ही होता है। तो अगर गैल्वेनिक सेल कैसे काम कर रहा था वो नहीं याद है तो फिर आप ये नहीं समझ पाओगे कि उसका उल्टा कैसे काम कर रहा था। ठीक है, तो दैट इज समथिंग विच यू विल हैव टू इंश्योर दैट आप स्टेप बाय स्टेप कवर करते जा रहे हो। अच्छा, नाउ जो पहले 2 वीडियो लेक्चर्स का फोकस है वो आप लोग ध्यान से समझ लो। For the first 2 video lectures, what are the important subtopics that I'm going to cover? So there is, सबसे पहला तो होगा construction and working of a galvanic cell। ठीक है, एक गैल्वेनिक सेल होता क्या है एंड कैसे वर्क करता है उसके ऊपर डिस्कशन रहेगा। नाउ जब मैं एक्सप्लेन करूंगा वीडियो लेक्चर्स में आप लोग देखोगे तो एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया होगा। मैंने एक डैनियल सेल जिसमें एक पार्ट में जिंक रॉड जिंक के सोल्यूशन में डिप्ड है एंड दूसरे पार्ट में कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर के
आयंस के सोल्यूशन में डिप्ड है, उसका एग्जाम्पल लूंगा। ठीक है, तो उसका एक्सप्लेनेशन एक क्विक ओवरव्यू के पर्सपेक्टिव से समझना। सी व्हेन यू हैव अ मेटल, ठीक है, व्हेन यू हैव अ मेटल इन कॉन्टैक्ट विद इट्स आयंस का सॉल्यूशन, ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज क्विकली ये जो बाउंड्री है यहाँ पर फेज, इसको हम बाउंड्री कहते हैं, ये जो बाउंड्री रहेगी कॉन्टैक्ट बाउंड्री बिटवीन द टू फेजेस, जो रॉड है, सॉलिड रॉड है और जो एक्वस सॉल्यूशन है, इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाता है। ठीक है, there is this equilibrium that gets established. Now as a result of this equilibrium, ठीक है, some cases में, some metals के केस में ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी रहती है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, एंड बैकवर्ड जाने की भी टेंडेंसी कई मेटल्स में डोमिनेटिंग रहती है, जिसको आप रिडक्शन बोलेंगे। एंड दिस टेंडेंसी इज समथिंग which is never measured in an absolute sense. It is always in a relative sense. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जिंक और कॉपर, ठीक है, इन दो के एग्जाम्पल के बारे में बात करूंगा, तो बिटवीन अ कंपैरिजन बिटवीन दीज टू, जिंक की ऑक्सीडेशन फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी एंड कॉपर की बैकवर्ड जाने की, रिडक्शन प्रोसेस में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये जो टेंडेंसी है ये एलिमेंट टू एलिमेंट, कंपाउंड टू कंपाउंड चेंज करती है, बिकॉज इट इज समथिंग एसोसिएटेड विद द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयंस की हाइड्रेशन एनर्जी, उन सब से रिलेटेड है ये। तो इट इज समथिंग विच चेंजेस फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, कंपाउंड टू कंपाउंड। किसी की ज्यादा टेंडेंसी ऑक्सीडेशन की होती है, किसी की ज्यादा टेंडेंसी रिडक्शन की होती है। सो अब नोटिस करना, जैसे मैंने जिंक और कॉपर का एग्जांपल लिया, ठीक है, सो जिंक, लेट्स से रॉड मैंने डाल दिया जिंक 2+ आयंस के सॉल्यूशन में, तो यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन का टेंडेंसी ज्यादा है, तो लेट मी राइट द रिएक्शन एज जिंक गोज टू जिंक 2+ aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, एंड ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, मतलब दिस इज एन इक्विलिब्रियम दैट गेट्स एस्टैब्लिश्ड। तो अब इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयंस बढ़ जाएंगे और जो जिंक का रॉड है उस पर ये इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। ठीक है, लेट मी ड्रॉ देम विद रेड कलर। तो ये अपने आप में एक कैपेसिटर वर्ड कितने बच्चों को पता है? कैपेसिटर वर्ड पता है क्या? अरे सुना आपने सुना हुआ है। ठीक है, सो ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि काफी बच्चों ने नहीं भी सुना होगा।
बट कैसा होता है जब ऐसे ऑपोजिट चार्जेस आर प्रेजेंट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अभी आपको ये बेसिक्स पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स में, अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया होगा तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो रॉड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उसके अराउंड पॉजिटिव चार्जेस का लेयर बना हुआ है। तो इट इज लाइक एन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, एंड वो डबल लेयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब मतलब ध्यान से नोटिस करना, ऐसा नहीं है कि अब मैं एक डिवाइस लेके आऊंगा वोल्टामीटर और उस वोल्टामीटर का एक तार इधर लगा दूंगा। ठीक है, लैब में यूज किया होगा वोल्टामीटर लोगों ने, और एक इधर कनेक्ट कर दूंगा और मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता पड़ जाएगा कितना हो गया। दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट गोइंग टू फ्लो। ये जो डिजाइन है ये अभी इनकम्प्लीट डिजाइन है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट गोइंग टू फ्लो थ्रू दिस सेटअप। तो हम लोग ऐसे ये एब्सोल्यूट जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है यहाँ पे उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर रहेगा एंड कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, बट उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग मेजर नहीं कर सकते। सिमिलरली अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक दूसरा केस है कॉपर का, एंड कॉपर की टेंडेंसी रहती है टू अंडरगो रिडक्शन। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये कॉपर का रॉड है जो कि कॉपर आयंस में डिसॉल्व्ड है, तो क्या हो जाएगा, कॉपर 2+ aqueous plus 2 electron will give you copper solid। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कॉपर के आयंस हैं ये जाके इस रॉड पे डिपॉजिट होने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये रॉड हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है और सोल्यूशन में अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सोल्यूशन में नेगेटिव चार्ज क्यों आ जाएगा, आप इसको सोच सकते हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि पहले जो सोल्यूशन था वो कॉपर और किसी अनायन का था ना, से कॉपर सल्फेट का होगा, तो पहले कॉपर 2+ और सल्फेट आयंस इक्वल अमाउंट में थे तो न्यूट्रल था सोल्यूशन। बट अब कॉपर 2+ आयंस जाके रॉड पे लग गए तो सोल्यूशन में प्लस चार्ज की डेफिशिएंसी हो गई और नेगेटिव चार्ज सरप्लस में हो गया, तो सोल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो गया और रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो यहां पर भी अब एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, नाउ एज यू कैन सी ये जो रॉड है जिंक वाला साइड जो है, दिस इज बिकमिंग एन इलेक्ट्रॉन सोर्स। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, whereas this copper electrode becomes like an electron sink, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो अगर मैं इनको एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दूं तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएंगे? हाँ। Yes. 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 वेल अब इसमें थोड़ा सा एक कैच है, ये इलेक्ट्रॉन्स अभी फ्लो नहीं कर पाएंगे। सर सॉल्ट ब्रिज। हाँ, मतलब यहाँ पे नोटिस करना कि मैं इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से जाना चाह रहे हैं उनको ये जो सोल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज है वो खींच रहा है। तो Yes, जब sir. तक ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता तब तक फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये एक तरीका हो गया सोचने का।
एंड दूसरा तरीका ये भी है सोचने का कि हमें ना सर्किट कंप्लीट चाहिए। अभी हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, करंट पूरे लूप में जाना चाहिए ना, तभी हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। सो अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग एक डिवाइस लगाते हैं यहाँ पर, विच इज कॉल्ड एज अ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? ये सॉल्ट ब्रिज आयंस प्रोवाइड करता है टू ensure that these electrolyte solutions are neutral। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की अबंडेंस थी, ये ऑक्सीडेशन जहाँ पे हो रहा था, ठीक है, जिंक कंपार्टमेंट के साइड पे यहाँ पे पॉजिटिव आयंस ज्यादा हो रहे थे, तो यहाँ से अनायंस फ्लो करके जाएंगे ताकि वो इस सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर दें। एंड यहाँ पर कॉपर वाले जो चेम्बर है, यहाँ पर सोल्यूशन में नेगेटिव आयन ज्यादा थे, तो यहाँ पर से कटायंस जाएंगे सो एज टू न्यूट्रलाइज दिस सोल्यूशन। एंड दिस एज अ रिजल्ट creates or completes a circuit। तो इसमें नोटिस करना कैसे ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स जो ऊपर है वायर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट, मतलब करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, देन वापस से यहाँ पे नोटिस करना, इंटरनल सर्किट जो है सॉल्ट ब्रिज में, सॉल्ट ब्रिज में अनायंस जिस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, करंट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एंड कटायंस जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट उस डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। इफ यू कैन सी, ऊपर वाले एक्सटर्नल पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एंड अंदर वाले पार्ट में आयंस की वजह से। करंट ऐसे एक्सटर्नल पार्ट में तो कॉपर की रॉड से जिंक की रॉड में जा रहा है करंट, एंड फिर इंटरनली जिंक के सॉल्यूशन से कॉपर के सॉल्यूशन में जा रहा है करंट। नाउ द मोमेंट वी थिंक अबाउट दिस, we need to appreciate the design of it. This is a design which has tapped in the inherent potential of elements, in this case तो elements हो गया, to lose electrons and gain electrons and make those electrons travel via an external circuit, which then can be used। अभी मैं यहाँ पे बल्ब लगा दूंगा तो वो बल्ब जग जाएगा, मतलब एज इन वो बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। So this is the design of it, that we are using a chemical reaction and उसको इस तरीके से डिजाइन करा जा रहा है कि हम उससे इलेक्ट्रिकल वर्क निकाल पा रहे हैं। Now this is something which was not part of thermodynamics। thermodynamics में हमने क्या देखा था? हमने मैकेनिकल वर्क पर ही फोकस करा था। उसमें कैसा था कि हमने मान लिया कि चलो कोई रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन से गैसेस बन रही होंगी, तो एक्सपेंशन कंप्रेशन हो रहा होगा, तो उसकी वजह से मैकेनिकल वर्क हो सकता है, पिस्टन अंदर बाहर हो सकती है। दैट इज हाउ एक्चुअली योर engines वर्क। जो आपके ऑटोमोबाइल्स के इंजन्स वगैरह होते हैं, तो उसमें भी रिएक्शन ही होता है, फ्यूल का कंबशन होता है। फ्यूल का कंबशन होने से गैसेस रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से पिस्टन्स मूव करते हैं अंदर बाहर। दैट इज अ डिजाइन दैट गिव्स राइज टू मैकेनिकल वर्क।
यहाँ पर भी अब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बट यहाँ का डिजाइन ऐसा है दैट इज गिविंग राइज टू अ नॉन मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है जिसके अक्रॉस इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराया जा रहा है। ये समझ में आया? Yes, sir. अब Yes. इसके साथ में ठीक है मल्टीपल क्वेश्चंस और थॉट्स डेवलप होते हैं कि ये सॉल्ट ब्रिज ही क्यों, मतलब किसी ने कैसे सोचा कि यही डिजाइन पहले से बना दे, ऐसा नहीं था। एक्चुअली देयर आर मेनी डिजाइन्स व्हिच केम बिफोर इट, ठीक है। लेट मी टॉक अबाउट कपल ऑफ दोज डिजाइन्स नाउ। सर कॉपर का रिएक्शन 100% फॉरवर्ड होता है क्या? अगर हम लोग इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, अगर मैंने ये कुछ कनेक्शन वगैरह नहीं बिठाया होता, ठीक है, ये आइसोलेटेड होता, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है कॉपर और कॉपर 2+ आयंस के बीच में। ओके। बट अब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है विद द जिंक इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बन गया है कि ये इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो आपको दिखेगा ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसा है कि जिंक को तो इलेक्ट्रॉन्स देने हैं एंड कॉपर को इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक से जिंक सारे आयंस, हाँ मतलब जिंक खत्म हो जाए, जिंक का रॉड डिप्लीट हो जाए, या फिर कॉपर के आयंस कंप्लीट हो जाए, या फिर सॉल्ट ब्रिज के आयंस जो हैं वो डिप्लीट हो जाएं, तब तक चलता रहेगा ये। यस सर। ठीक है। अच्छा, सो एज आई वाज कमिंग बैक टू टॉक अबाउट कि one of the ways in which you think or talk about this setup is कि salt bridge नहीं यूज करेंगे एंड सॉल्ट ब्रिज की जगह हम लोग एक ऑप्शन होता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज कर लें। मतलब ऐसा है कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बीच में, यहाँ पर जिंक के आयंस हैं, ठीक है, यहाँ पर कॉपर है और कॉपर के आयंस हैं, एंड दिस इज इन बिटवीन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जिसके अक्रॉस आयंस एंड ऑल फ्लो कर सकते हैं। इसको पोरस डिस्क भी बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके अक्रॉस आयंस फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज ओके। बट अब इस सेटअप में, अरे एक मिनट, इस सेटअप में जो एक ड्रॉबैक हो जाता है वो ये हो जाता है दैट ये जो मेम्ब्रेन है इसकी बाउंड्री पे क्या है, यहाँ पर चार्जेस अक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है, इसकी बाउंड्री पे चार्जेस अक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो अब आप नोटिस करोगे तो ये क्या हो गया, वापस से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया विद इन द सेल, and this potential difference is something which reduces the effectiveness of the cell, because this potential difference is opposite to what the cell would be generating। मतलब जैसे आप लोगों ने कभी जूनियर क्लासेस में पढ़ा हो या कुछ ऐसा पढ़ा हो कि मान लो ये ऐसे 5 वोल्ट की बैटरी लगाई बट उसके ऑपोजिट ऐसे 2 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो नेट तो 3 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस आया ना। तो इस केस में भी कैसा हो जाएगा, ये जो इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया जिसको हम लोग लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा सेल का इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। तो इट्स अ डिजाइन दैट वर्क्स बट इट्स अ पुअर डिजाइन। सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज में ये लिक्विड जंक्शन जो है, और ये जो लिक्विड जंक्शन है ये मिनिमाइज हो जाता है, मतलब ये यहाँ पर वी ट्राई टू मिनिमाइज इट, जीरो तो नहीं बोलूंगा
बट मिनिमम। ठीक है सर पर चार्ज एक्यूमुलेशन क्यों होगा? अरे इनके अक्रॉस चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ना, तो जब चार्जेस ऐसे यू कैन से एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्रॉस करेंगे तो इतना फ्रीली फ्लो नहीं करेंगे वो, they would be flowing through it but not as freely as they would flow within the solution itself. ओके सर। तो वो जो जंक्शन है लिक्विड और लिक्विड के बीच का जंक्शन है, वहां पर ये पोटेंशियल क्रिएट होगा। So the chances of short circuit in this one will be more, right? Sorry? The chances for the circuit to get short in the second diagram will be more, right? नहीं शॉर्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा यहाँ पर। आपका ये सेल वर्क करेगा, डिजाइन वर्क करेगा, यहाँ पर आपके आयंस फ्लो हो जाएंगे। जो प्रॉब्लम सॉल्ट ब्रिज सॉल्व कर रहा था कि कि ये सॉल्यूशंस न्यूट्रल होने चाहिए ताकि सर्किट पूरा हो जाए एंड बाहर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और अंदर आयंस मूव करेंगे, वो पर्पस यहाँ पे भी फुलफिल हो जाएगा। बट द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड वुड बी लेसर, जो करंट प्रोड्यूस होगा वो भी कम हो जाएगा। Okay. अच्छा, देन somebody had asked me about this की क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ सॉल्ट ब्रिज की जगह यहाँ पर वायर डाल दूं तो would that be also a working solution? वायर नहीं डाल सकते आप, वायर से कुछ नहीं होगा। अगर इनफैक्ट आपने ज्यादा रिएक्टिविटी वाला वायर डाल दिया, ठीक है, मान लो आपने यहाँ पर ऐसे आयरन का वायर डाल दिया, तो आयरन तो कॉपर के आयंस के साथ में यहीं पे रिएक्शन करना शुरू कर देगा। आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर आयंस। सर लेकिन क्या वो इलेक्ट्रॉन्स जो कॉपर के साइड में है वो फ्लो नहीं कर जाएंगे सर ये दूसरे हाफ सेल में? नहीं आप समझे नहीं मेरी बात। मुझे क्या चाहिए था कि कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, एज इन कॉपर का जो आयन है वो यहाँ पर जाकर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे। जो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऊपर से आ रहे हैं ना, यस सर, इनको ये कॉपर के आयन्स यहाँ पर एक्सेप्ट करें। अब मान लो मैंने यहाँ पर आयरन का इलेक्ट्रोड डाल दिया, मतलब आयरन का वायर डाल दिया। अब ये आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा ना कि कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन होता है, इसमें आयरन डाल दो, आयरन का रॉड डाल दो तो थोड़े टाइम बाद ग्रीन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आयरन बीइंग अ मोर एक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन यहीं पे होने लग जाएगा, यहीं पर ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होने लग जाएगा। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो गया वो तो मैं टैप ही नहीं कर पाया ना, वो तो मेरे लिए सेल ही नहीं बना। मतलब दिस इज एज गुड एज सेइंग कि सर ये रिएक्शन जो आपने बोला, ये रिएक्शन तो मैं ऐसे ही करा दूंगा ना। मैं क्या करूंगा कि जिंक का रॉड कॉपर 2+ के आयंस में डाल दूंगा तो ये रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। बट ये पुअर डिजाइन हो गया ना, अब ये रिएक्शन यहीं पे हो जाएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स में कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा? यस सर। एंड वन मोर डाउट, जो सेकंड वाला डायग्राम है, अगर कॉपर के साइड के जो Cu2+ आयंस है वो कॉपर को ही अटैच रहे और Zn2+ के आयन जिंक को ही अटैच रहे और फिर वो फ्लो ही नहीं करे तो फिर तो सर्किट वर्क ही नहीं करेगा ना। हाँ, सो मतलब अगर आप कहना चाह रहे हो कि इनफैक्ट ये हम लोग पढ़ेंगे भी सही बाद में। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कॉम्बिनेशन में वर्क कर रहा है, एक की ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी है और एक की रिडक्शन की टेंडेंसी है, ठीक है, तो ये हमारा सर्किट वर्क कर रहा है। ठीक है, यस सर। हम लोग एक सब टॉपिक पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 4 में आएगा, एक्चुअली वो इस लेक्चर में आएगा, कॉन्सेंट्रेशन सेल करके होगा। तो उसमें आपको ये बताया जाएगा कि ये साइड का और दूसरी साइड का दोनों का टेंडेंसी सेम हो गया, ऑक्सीडेशन का या रिडक्शन का, तो उस केस में भी फिर सेल वर्क नहीं करेगा।
ओके ठीक है, उस केस में भी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल 0 आ जाएगा। वो थोड़ा सा समझ में आएगा जब आप बिल्ड करके यहाँ पर आओगे, लेक्चर नंबर 4 पर आओगे तब। ठीक है, सो एनीवेज वी हैव टेकन अ full session time today. I hope this brief about the construction and working of a galvanic cell will help you kickstart the assigned task. So ये okay है सबके लिए? I think this is something which is sufficient. Yes. Yes, sir. यस सर Yes. सर बुकलेट पैनेजा पे है क्या? नहीं, बुकलेट आप लोगों को शायद ग्रुप पे भेज दिया गया था, सॉफ्ट कॉपी। Yes, sir. ठीक है, तो वो देखना एक बार एंड बी रेडी विद दिस फॉर द नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट सर, अराउंड कितना टाइम लगेगा लेक्चर सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म करने के लिए? हमें कितना टाइम लगना चाहिए? यार आई एम मतलब सी, जैसा रेगुलर क्लासरूम के केस में होता था ना, आपके सारे ट्रैक्स चल रहे हैं पैरेलल में, बीच बीच में टेस्ट भी आ रहे हैं, कभी कभी कॉलेज का काम भी आ रहा है, तो वो सब चीज़ों के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएंगे तो आप नोटिस करो ना, कितने 8-9 लेक्चर हैं और हर हफ्ते में 2 लेक्चर, कभी 1 लेक्चर होता था। हाँ तो लग जाता है 1.5 मंथ के आसपास लग जाता है। ओके सर, 1.5 मंथ हो। ठीक है, सो सर सी मतलब इतना टाइम देखते हैं, मतलब आई वुड नॉट वांट टू रश कि जस्ट बिकॉज एक साथ सारे वीडियो लेक्चर्स मिल गए हैं और आप एकदम दौड़ना शुरू कर रहे हो। आपको अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करना है ना बाकी सारे ट्रैक्स के बीच में भी, एंड यू विल आल्सो हैव टू काइंड ऑफ गिव टेस्ट्स आल्सो इन बिटवीन। यस सर। ठीक है, एंड मैंने मिसिंग लेक्चर का लिंक डाला हुआ है ग्रुप पे, दोबारा देखना। हाँ डाला। ठीक है, नहीं मिलेगा तो मैं दोबारा पोस्ट कर दूंगा। वैसे भी अभी के लिए आपके लिए जरूरी नहीं है, अभी के लिए आपको 1 और 2 ही फोकस करना है, जो कि उसी गिवन यस सर। उसमें है। ठीक है सर, क्या आप इस जूम लेक्चर का रिकॉर्डिंग का लिंक भेज सकते हैं ग्रुप पर? ये जो अभी हुआ इसका? यस सर। क्यों? सर मेरा हाफ मिस हो गया था सर, वॉल्यूमेट्रिक HA4। अच्छा ठीक है, देखते हैं, करता हूँ ट्राई। नहीं रिकॉर्डिंग नहीं हो रही क्या? हो रही है सर। हाँ होनी चाहिए, बट क्योंकि क्या है, मेरा क्लाउड स्टोरेज भर गया है तो मैं लोकल मशीन पे ही सेव कर रहा हूँ। अब वो मुझे अपलोड करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, फिर YouTube पे अपलोड करके या तो मैं लिंक भेजता हूँ, ऐसा कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू सर। चलो, ऑल राइट गाइस, थैंक यू।